Hello students, today we are going to discuss formula list from the chapter superposition of wave point of view. I am confident इस सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. So let's get started. बेटा सबसे पहले हमारे पास है आपके लिए डिस्कशन रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ वेव. Students, अगर हमें बताया जाता है that the wave is transverse, so we use the formula Vt is equals to under root of t by m. Velocity of transverse wave Vt is given by the formula under root of t by m. Students, t will be tension and small m will be linear density, also called as linear mass density. Simple terms में हम कह सकते हैं ये छोटा m होगा mass per unit length. आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप मास को लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, देन आप वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, हाइट विल बी लेंथ, लेंथ कैंसिल आउट, आपको मिलेगा t. यस, so small m is linear density, that is linear mass density, that is mass per unit length. Formula will be rho a, density multiplied by area of cross section. आप समझे स्टूडेंट्स कैसे मैंने डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया इसे. छोटा m linear density, rho density of the medium obviously. Okay, next students we are having velocity of longitudinal wave. Formula for velocity of longitudinal wave is given by the formula under root of e by rho. Students, velocity of longitudinal wave is equal to under root of e by rho. What is e? Modulus of elasticity. What is rho? Density of the medium. Okay. बेटा अगर आपको पूछा जाता है a general formula for velocity of wave, तो आप आंसर देना v is equals to n lambda. What is v sir? Wave velocity. What is n? Frequency. What is lambda beta? Wavelength. Okay. v is equals to n lambda. General formula हो गया. ये किसके लिए है? ट्रांसवर्स वेव. ये किसके लिए है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव. ये किसके लिए है? सबके लिए. जनरल फॉर्म. ओके. Guys, what about the velocity of particle? Vp is equals to plus or minus omega under root of a square minus y square. But over here I am assuming that wave is propagating along, let's say, x direction and particle is performing SHM along y direction. That's why आपको यहाँ पे y square दिख रहा है. What is a sir? Amplitude. What is y sir? Displacement of particle from mean position. ज़्यादातर बार हमारे सिलेबस के हिसाब से ये mean position होने वाला है x axis. What is omega? Angular frequency sir. So if required, हम ये omega को लिख सकते हैं sir 2 pi f. F for frequency, that is equals to 2 pi by t. So t is the time period. Vp is definitely velocity of the particle. Correct है बेटा? आपको समझाइए कैसे करना है velocity related terms. Okay. Next है बेटा हमारे पास आपके लिए discussion about transverse wave equation. That means I am going to consider students a simple harmonic progressive wave traveling along positive direction of x-axis. Okay. SHP wave which traveling along positive direction of x-axis. The formula for y will be a sine of omega t minus kx. Correct है? बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय a for amplitude, omega angular frequency, सबके होने वाला है propagation constant, also called as angular wave number. That's why इसका खुद का फॉर्मूला होने वाला है 2 pi by lambda. Yes sir. So y can also be written as a sin. बेटा ओमेगा क्या बताया था मैंने रिसेंटली आपको 2 pi f, 2 pi into frequency. अच्छा ये 2 pi कॉमन ले सकते हैं. ब्रैकेट में मुझे मिलेगा nt minus x by lambda. बेटा n is the frequency. आप फ्रीक्वेंसी को f ले लो, आप फ्रीक्वेंसी को n ले लो. यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को n कंसीडर कर रहा हूँ. Yes. Therefore y will also be equals to a sin 2 pi. Frequency is reciprocal of time period. तो छोटा t divided by बड़ा t minus x by lambda. सर यहाँ पर ये जो कैपिटल t है, this is the time period, जिसको हम लिखे हैं in replacement of frequency का reciprocal, या फिर हमने 1 upon time period लिखा है in replacement of frequency. करेक्ट है बेटा? आप समझिए. ओके बेटा यहाँ पर बहुत बार हमें फेज डिफरेंस का जरूरत पड़ जाता है. सो हाउ कैन वी डिटरमाइन फेज डिफरेंस डेल्टा फाई? तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं. इसमें दो वैरायटी आ सकता है. यस, वैरायटी 1, two particles at one instant, and next can be one particle at two different instants.
Students, if there are two different particles but at one single instant, in that case delta phi phase difference का फॉर्मूला होगा 2 pi by lambda multiplied by delta x। मैं आपको बता चुका हूँ जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है एंड जो 2 पाई बाय लैम्डा है वो k है, k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। डेल्टा x हुआ बेटा उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, पॉपुलरली दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस। तो आपने अपने बुक में ऐसा भी देखा होगा, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, दिस इज दैट फॉर्मूला डेल्टा phi इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। एंड इफ यू नीड बेटा हम डेल्टा x को और क्या लिख सकते हैं, इट इज x2 x1। वही तो कहा मैंने आपसे बेटा, distance between those two particles is x2 minus x1 यानी delta x, that's path difference, correct? बेटा यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, yes, but at two different instant, मतलब इसमें दो अलग पोजीशन पे आपका एक पार्टिकल होगा अलग अलग टाइम पे, तो यहाँ पे with respect to time difference आपको बात करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस डेल्टा phi हो जाएगा 2 pi by t, कैपिटल T, सर कैपिटल T is the time period multiplied by delta t। बेटा डेल्टा टी होने वाला है टाइम डिफरेंस, तो आप डेल्टा टी को लिख सकते हो सर t2 minus t। आर यू फॉलोइंग दिस? यस स्टूडेंट्स, आई एम कंसीडरिंग ओवर हियर दैट अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसलिए हमने बीच में माइनस का साइन यूज किया है। इन केस देयर इज रिवर्स ऑफ दिस, यू कैन इवन कंसीडर दैट सेपरेटली एज अ नोट बेटा। if there is SHP wave, simple harmonic progressive wave traveling along negative direction of x axis, बेटा in that case कोऑर्डिनेट वाला माइनस एंड ये लैग वाला माइनस नीचे हो जाएगा प्लस। अब समझिए बेटा y will be a sin 2 pi t by t plus x by lambda। आई थिंक ये सिंगल इक्वेशन हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, अदर इक्वेशन यू कैन आल्सो फिल। आर यू फॉलोइंग दिस क्वेश्चन? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली अगर हम बोर्ड एग्जाम पे सिर्फ फोकस करें फिलहाल तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्कशन अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। फॉर वन सिंगल वेव द डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज y1 वेक्टर, फॉर अनदर वेव डिस्प्लेसमेंट एट द सेम पॉइंट इज y2 वेक्टर। यस, तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर एट दैट पॉइंट। सो इन जनरल एक फॉर्मूला बनाना है स्टूडेंट्स, हमें लिखना है y वेक्टर, दिस इज लाइक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो प्लस मैं लिख देता हूं डॉटेड डॉटेड। यस, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा बेटा, आपको इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का आपको वेक्टर सम देना है, दैट्स इट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो y वेक्टर इज y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर है सो। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं। इसके द्वारा टोटल 3 एप्लीकेशंस एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न्ड। एप्लीकेशन नंबर 1, interference of waves। Application number 2, formation of beams। these two means formation of stationary wave। okay, नोट करिए बेटा, हम आपको एक एक करके सबका डिस्कशन करवाएंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसमें हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट वेव इक्वेशन y1 is equals to a1 sin omega t, second wave equation y2 is equals to a2 sin of omega t plus phi। so clear cut आपको समझ रहा है that the two waves are having two different amplitudes a1 and a2, उनका जो फ्रीक्वेंसी है या फिर उनका जो टाइम पीरियड है वो सेम है, that's why omega 1 omega 2 मैंने नहीं लिखा है। दोनों के बीच में डेफिनेटली देयर इज सम फेज डिफरेंस, आई एम कंसीडरिंग बेटा दैट फेज डिफरेंस एज phi। इसका फेज 0 है, इसका फेज है phi बेटा, so phase difference will be phi minus 0 which is phi, and displacement definitely y1 by2 first wave second wave respectively। क्या होगा अगर ये दोनों वेव आपस में सुपरइम्पोज करेंगे? सो मैथमेटिकली एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हमें क्या करना है, हमें यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हमें लिखना होगा y is equals to y1 plus y2। ओके,
बेटा y में भी हमने रेगुलर लेक्चर में किया हुआ है, ये y1 को सब्स्टिट्यूट किया, y2 को सब्स्टिट्यूट किया, हमने अच्छा खासा मैथमेटिक्स यूज किया है। तो फाइनली हम वन शॉट लेक्चर में हैं, हम फॉर्मूलेस फ्रेम कर रहे हैं, सो मैं डायरेक्टली फाइनल फॉर्मूले पे आ रहा हूं बेटा। दिस इज AR sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल, ये मिला बेटा हमें रिजल्टेंट वेवफॉर्म। y इज इक्वल टू AR sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल। डेल क्या है बच्चों? ये फेज ही तो है। इसका फेज क्या है 0, इसका फेज क्या है 5। जो डेल आपको दिख रहा है वो फेज है किसका? रिजल्टेंट वेवफॉर्म। ओके, जो AR है बेटा दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेवफॉर्म। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेवफॉर्म बेटा इसका खुद का फार्मूला होगा AR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos phi। phi वही फेज डिफरेंस है जो हमने इनिशियली phi माइनस 0 कंसीडर किया था। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेवफॉर्म AR क्या होगा? यस, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos of phi। ओके स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो दिस। इंटेंसिटी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यस सर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी मिलने वाला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय cos phi। यस, आर यू गेटिंग इट? AR आपको मिल चुका है, यूजिंग दैट आपको मिलेगा इंटेंसिटी, या फिर आप बेहतर लिख सकते हैं IR इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेवफॉर्म I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इनटू cos phi। तो स्टूडेंट यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होता है दो स्पेशल टाइप के इंटरफेरेंस का, namely कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके बेटा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं जो फेज डिफरेंस आपको मिला है phi उसे कंसीडर कर लेता हूँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एक्सेट्रा। यस, तो आप मुझे बताएंगे इफ दिस हैपेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos phi? नाउ टेल मी cos phi क्या होता है? cos phi will be plus 1. What is cos 0? 1. cos 2 pi 1. cos 4 pi 1. ये चलता है। तो बेटा AR का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। मतलब अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आंसर बाहर को स्क्वायर रूट है, तो AR मिल जाएगा आपको cos phi 1 होने की वजह से। यस सर, A1 प्लस A2। बेटा आई थिंक आप ऑलरेडी जान चुके होंगे दैट दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। That's why हमने ये इंटरफेरेंस को स्टेटस भी दिया हुआ है बेटा, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। AR will be A1 plus A2। बेटा सेम वे अगर आपको इंटेंसिटी सॉल्व करना है तो आप IR को क्या लिखोगे? बेटा आप I1 को लिखना अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर, आप I2 को लिखना अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। यस, प्लस 2 स्टूडेंट्स रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 इनटू आप लिखना cos phi को 1। बेटा ये हो गया रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। आर यू फॉलोइंग दिस? बेटा अगर एम्पलीट्यूड मैक्स है तो बाय डिफॉल्ट इंटेंसिटी भी कैसा होगा? मैक्स ही तो होगा सर। यस, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है द टू वेव्स आर मीटिंग इन फेज। That's why phase difference हमने ये 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi कंसीडर किया। अगर आप ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हो so crest should superimpose with crest and trough should superimpose with trough। अगर आप longitudinal वेव की बात कर रहे हो so compression के साथ superimpose होना चाहिए and same way rarefaction के साथ में superimpose होना चाहिए। आप समझे बच्चों क्या चल रहा है? ओके, आप बताइए स्टूडेंट्स, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा? यस टेल मी। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा इस बार आप बताइए दोनों वेव्स कैसे मिलने चाहिए? आउट ऑफ फेज। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो क्रेस्ट शुड सुपरइम्पोज विद ट्रफ एंड ट्रफ शुड सुपरइम्पोज विद क्रेस्ट। अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव हुआ तो कंप्रेशन किसके साथ मिलना चाहिए? रैरेफैक्शन के साथ। एंड रैरेफैक्शन किसके साथ मिलना चाहिए? कंप्रेशन के साथ। यस बेटा फेज डिफरेंस जिसको हम phi कंसीडर कर रहे हो क्या क्या हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में? इट इज pi, यस 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कहना है cos phi का वैल्यू will be -1। ओके, तो AR हो जाना है स्टूडेंट्स। यस,
अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई क्या हो गया माइनस। आप सिंपलीफाई करोगे तो लास्ट टाइम आपको मिला था a1 प्लस a2, बेटा दिस टाइम माइनस है बीच में तो आपको मिलने वाला है a1 माइनस a2। करेक्ट है बेटा, डेफिनेटली मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं दैट a1 इज ग्रेटर देन a2। इन केस आप श्योर नहीं हो, ओके नो प्रॉब्लम सर, यू कैन मूव इन मॉड्यूलस। हां जी ठीक है बेटा। यस स्टूडेंट, दिस हैज टू बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड। Same way, intensity of resultant waveform रहेगा IR is equals to under root of students I1 minus under root of yes I2 the whole square. IR is root of I1 minus root of I2 the whole square. Yes, this has to be which intensity? Minimum intensity. अब समझे बच्चों क्या चल रहा है ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। बेटा एक फॉर्मूला मैंने कई बार देखा एग्जाम में काम आ जाता है। They ask you the ratio of maximum to minimum intensity. यहाँ फिर करूँगा साइड में बेटा इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम। मिक्सअप नहीं करना बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये कॉलम है, डिस्ट्रक्टिव यहाँ होगा। यहाँ पे हम सेपरेटली एक नोड कंसीडर कर रहे हैं सेपरेटली, ओके मिक्सअप नहीं करना है। इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम। स्टूडेंट्स इंटेंसिटी मैक्स इज दिस एंड दिस इज इंटेंसिटी मिनिमम, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 the whole square। करेक्ट है स्टूडेंट्स। when you simplify this आप इसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हो स्टूडेंट्स, a1 plus a2 divided by a1 minus a2 the whole square। yes, are you following this? okay, because this is first application of principle of superposition of waves, interference of waves। इसको आप कंप्लीट करिए। now we are doing second application of principle of superposition of waves, which is formation of beats। Students, now we are doing formation of beats। Students, यहाँ पर आपको दो phenomenon देखने मिलते हैं, one is waxing, another is waning। Students, in case of waxing हम कह के चलते हैं that there is constructive interference going on, so amplitude of resultant waveform will be a1 plus a2। रिजल्ट को समझाया आपको। what if I tell you a1 a2 दोनों का बेटा amplitude का जो वैल्यू है वो सेम, वैसे AR will be A plus A, that is 2A। करेक्ट है। अगर आप डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे so it is either plus 2A or it is minus 2A। ओके बेटा, AR will be plus or minus 2A for formation of waxing। बेटा waning का मतलब है there will be destructive interference, so amplitude of the resultant waveform will be, yes tell me, it is A1 minus A2 when there is destructive interference। but हम जानते हैं बेटा A1 will be equals to A2, let's say it is equals to A, so A minus A will give you 0। करेक्ट है। That's why हम कहते हैं ना कि बीट्स के फॉर्मेशन के लिए दो ऐसे वेवफॉर्म होने चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, so that A plus A मिलके हो जाए 2A and A minus A हो जाए बेटा 0, such that we get waxing waning waxing waning waxing waning periodically, and हम कह सकते हैं that हमने बीट्स का फॉर्मेशन कर दिया। yes students, हमसे अगर पूछा टाइम बिटवीन waxing and immediate next waxing, so we'll say it is 1 upon n1 minus n2। आप डिफरेंस कर रहे हैं तो मान के चल रहे स्टूडेंट्स दैट n1 इज ग्रेटर देन n2। इन केस आप श्योर नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम सर, यू कैन गो विद मॉड्यूलस। यस, द टाइम बिटवीन वेरिंग एंड नेक्स्ट वेरिंग विल बी 1 अपॉन n1 माइनस n2। सेम है। अच्छा, इसी टाइम के चलते हमने नाम दे दिया बीट पीरियड। स्टूडेंट्स, बीट पीरियड का मतलब ही होता है time between two consecutive waxing or time between two consecutive waning, which is 1 upon n1 minus n2। yes beta, what can be the formula for beat frequency then? yes tell me beta, what is frequency? usually reciprocal of time period। so beat frequency क्या होगा? reciprocal of beat period होगा, तो इसका आपको लेना है reciprocal, which is nothing but students mod of n1 minus n2। very important formula for solving numericals from your government textbook। formula for beat frequency will be modulus of n1 minus n2। okay बेटा, एग्जाम में एमसीक्यू में आपको ये पूछ सकते हैं टाइम बिटवीन अ वैक्सिंग एंड नेक्स्ट वेनिंग कितना होगा? इसका हाफ होगा बेटा, इट विल बी 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 minus n2। करेक्ट है। वैक्सिंग के बीच में कितना टाइम लगा? बीट पीरियड। वेनिंग के बीच में कितना टाइम लगा? बीट पीरियड। वैक्सिंग के बाद में जो वेनिंग आ रहा है उसमें कितना टाइम लगा? हाफ ऑफ बीट पीरियड। yes,
एंड सब जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसी इज मॉड्यूलस ऑफ n1 minus n2 व्हिच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड। इसका रेसिप्रोकल बेटा 1 upon n1 minus n2 का रेसिप्रोकल इज n1 minus n2। याद किया स्टूडेंट्स हमने बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? यस बेटा अभी इसमें हम टाइप कंसीडर कर लेते हैं। बीट में टाइप 1 न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको डिटरमाइन करना होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v। दिस क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो मैंने आपके स्टेट बोर्ड के बुक में देखा होगा। बेटा इसमें आपको बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं n1 minus n2। अच्छा पहले आपको क्या करना है, आपको जो लैम्डा दिया है उसको सोचना है। बेटा लेट्स से लैम्डा 1 जो आपको गिवन है इट इज लेसर देन लैम्डा 2। आई एम अज्यूमिंग दिस, लेट्स अज्यूम दिस, ओके। लेट्स अज्यूम दिस दैट लैम्डा 1 इज लेसर देन लैम्डा 2। सो कैन आई से स्टूडेंट्स velocity of sound wave तो कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर velocity of sound wave? v is equals to n lambda। so n lambda is constant, that means frequency will be inversely proportional to wave length। बेटा यहां पे लिख दो n1 will be greater than n2 using that, okay। so if lambda 1 is lesser than lambda 2 बेटा n1 will be greater than n2। आप बताइए फिर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? n1 minus n2। सर यहां पे नॉट लेना है, 2 लेना है सर, आपको पता चल चुका है that n1 बड़ा है n2 छोटा है, तो वो भी n1 minus n2। यस बेटा what is velocity of sound wave? v का फॉर्मूला n lambda। so what is n? v by lambda। बेटा v by lambda 1 minus v by lambda 2। is that fine? आप v कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2। this will give you nothing but beat frequency। are you following? अब डेटा में आपको lambda 1 lambda 2 will be given, beat frequency will be given, you can easily determine velocity of sound wave using this particular formula। एंड डोंट वरी इन केस ये उल्टा हो जाता है तो बाकी सारी चीजें करस्पॉन्डिंगली आपको चेंज करनी रहेगी, पर दैट डिपेंड होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझे बेटा टाइप 1 कैसे करना है? यस नाउ स्टूडेंट्स टाइप 2 जो आता है इट इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। हमें बताया जाएगा दैट n नंबर ऑफ यूनिक फॉक्स आर देयर व्हिच आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट हर दो बाजू वाले ट्यूनिंग फॉर्क के बीच में एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। सो मैथ्स के लैंग्वेज में ये एपी हो गया एंड फिजिक्स के लैंग्वेज में सर दो बाजू के ट्यूनिंग फॉर्क के बीच में आपको क्या मिला? बीट्स। तो मैथ्स के लैंग्वेज में जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग नंबर्स है, वही हमारे फिजिक्स के बीट्स की भाषा में बीट फ्रीक्वेंसी होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी? दैट डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। यस सो स्टूडेंट्स n नंबर ऑफ यूनिक फॉर्क्स आर देयर। हमने इसको कैसे अरेंज किया हुआ है इन एपी। सर एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्कूल वाला फॉर्मूला एपी का n टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ b। देखा हुआ है हमने इसको। अब इसको थोड़ा सा हम इंप्रोवाइज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। हमारे बीट्स की भाषा में वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क f1 बेटा, करेक्ट है। सिंपली f2 हो जाएगा बेटा, f3 हो जाएगा। लाइकवाइज आंसर आपको जाना है बेटा frequency of nth tuning fork will be frequency of first tuning fork plus n minus 1 times of b। sir what is the common difference? बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ स्मार्ट करना पड़ेगा। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये हो सकता है बीट फ्रीक्वेंसी या फिर ये कॉमन डिफरेंस हो सकता है बीट फ्रीक्वेंसी विद अ नेगेटिव साइन। नाउ हाउ कम दैट इज पॉसिबल? बेटा बीट फ्रीक्वेंसी थोड़ी हमें नेगेटिव दिया होगा, बीट फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव ही होगा। अब अगर आपने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क का, असेंडिंग ऑर्डर, देन कॉमन डिफरेंस वही लेना है जो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब पॉजिटिव, राइट। तो बेटा ये आपको इस्तेमाल करना होगा व्हेन देयर इज असेंडिंग ऑर्डर। आर यू फॉलोइंग दिस? एंड सो यही कॉमन डिफरेंस ही हो जाएगा नेगेटिव ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी जब हमें ये ट्यूनिंग फॉर्क्स दिए होंगे विद डिसेंडिंग ऑर्डर। आप समझिए बेटा कैसे करना है ये, ओके। दिस इज बेटा discussion about formation of beats as how to change frequency of a tuning fork. So we can consider a node separately for understanding this. Now usually there are two ways जिससे हम tuning fork की frequency को change कर सकते हैं. First is better by putting wax on tuning fork. Okay. So there will be a tuning fork sir. हम उसके ऊपर wax चिपका देंगे. So definitely its mass will increase. And students, when its mass will increase, its frequency of vibration will decrease. Obvious? Yes. The next is
बाय फाइलिंग। हम सैंड पेपर लेकर ये ट्यूनिंग फॉर्क को घिसना जब शुरू करेंगे तो उसका जो मास है वो कम होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। यस, so by putting wax on tuning fork its frequency will decrease and by filing the tuning fork its frequency will increase. समझे बच्चों क्या चल रहा है? Guys, now we are doing formation of stationary wave. Third application of our principle of superposition of waves. Yes. आपके सिलेबस के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, for formation of stationary wave you need total two progressive waves having same amplitude, same wavelength, same frequency but opposite direction. Yes. तो बेटा हम जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यूज करेंगे हमें मिलने वाला है दो प्रोग्रेसिव वेव की मदद से एक स्टेशनरी वेव। आई जस्ट गिव यू द हिंट क्विकली students. If waveform 1 is like this, y1 is equals to a sin 2 pi p by t minus x by lambda. Sir, what is this? This is progressive wave, right? Traveling along positive direction of x-axis. Sir, waveform number 2 will be this way. y2 is equals to a sin 2 pi t by t plus x by lambda. Sir, this is simple harmonic progressive wave, transverse wave, propagating along negative direction of x-axis. SHP wave traveling along positive direction of x-axis. SHP wave traveling along negative direction of x-axis. ये क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आप समझे कि नहीं? दोनों का सिर्फ क्या अलग है? डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड कैसा है सेम, टाइम पीरियड कैसा है सेम, वेवलेंथ कैसा है सेम। यस, हमने थ्योरी लेक्चर में आपको पढ़ाया है बच्चों, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स y will be y1 plus y2। हमने आपको पूरा डेरिवेशन करवाया है, अच्छा खासा मैथ भी उसमें हमने यूज करवाया है। राइट नाउ फॉर्मूले इसके लिए हम मिले हैं, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दूंगा बेटा, y is equal to 2a cos 2 pi x by lambda multiplied by sin 2 pi nt। Yes, this is one of the general format of stationary wave। कैसे मिलता है बेटा? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कौन सा वेव है सर? ये दिस इज SW स्टेशनरी वेव, also called as standing wave, also called as non progressive wave। y is equals to 2a cos 2 pi x by lambda multiplied by sin 2 pi nt। yes sir, बेटा इसका मतलब ये होगा मैं y को लिख सकता हूँ amplitude of the resultant waveform multiplied by sin 2 pi nt। guys, as you can observe ar मैंने लिखा in replacement of this cos वाला term। yes, so ar is nothing but 2a cos 2 pi x by lambda। सो यहाँ पर हमें कंसीडर करने होंगे टू स्पेशल केसेस बेटा। इन केस AR इज मैक्सिमम, AR इज आइदर +2a और इट इज -2a, हम वैसे पार्टिकल को स्टेशनरी वेव के लैंग्वेज में नाम देते हैं एंटीनोड। एंटीनोड सर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम +or-2a एंड इफ देयर इज नोड बेटा एग्जैक्टली इसका रिवर्स होगा तो AR विल बी इक्वल्स टू 0। बेटा आर यू फॉलोइंग दिस? एंटीनोड एंड नोड। यस, what is displacement at antinode sir? It is maximum +or-2a। what is displacement at node sir? It is minimum which is 0। yes students, इसके बाद स्टेशनरी वेव इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैप्टर, उसमें डिस्कशन स्टार्ट होता है। हमें सबसे पहले इसमें डिस्कशन करना होगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लग करते हैं एंड वी गेट डिफरेंट हार्मोनिक्स, डिफरेंट ओवरटोन्स एंड वहां पे सॉल्विंग करके बेटा हमें फॉर्मूला मिलता है n = p/2h स्क्वायर रूट ऑफ p by n। व्हेन द सेशन स्टार्टेड हमने आपको ये डिस्कशन करवाया था वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स बेटा pt = t by m। बेटा t इज द टेंशन, छोटा है लीनियर डेंसिटी, p इज अ न्यूटन। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। l इज बेटा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, व्हाट इज n सर? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज p स्टूडेंट्स? बेटा यहां पे p होगा number of loops, can also be considered as beta number of harmonic, can also be considered as students number of anti-loop। yes बेटा इसमें आपको h का, इनफैक्ट इसमें आपको p का क्या क्या वैल्यू मिलने वाला है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। करेक्ट है बच्चों? because in case of modes of vibration of string हम क्या कह के चलते हैं that all harmonics are present। so p का वैल्यू अगर मैं हार्मोनिक कंसीडर करूं तो p का वैल्यू क्या होगा? 1 for first harmonic,
then p का वैल्यू 2 for second harmonic, then p का वैल्यू 3 for third harmonic, n equals to p by 2l under root of p by n beta. p will be number of loops, that is harmonic number, that is number of anti-loops. ये सब एक ही है 1 2 yes रेगुलर लेक्चर में डेरिवेशन किया था. राइट नाउ वी आर रिवाइजिंग, फटाफट हम लोग फॉर्मूले कंसीडर कर रहे हैं. करेक्ट है? यस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एयर कॉलम के दो केसेस कंसीडर करने होंगे. सर यहाँ पे दो वैरायटी है. यस beta 1x, there is a pipe which is closed at one end. Yes sir, it's somewhat like this. Okay, and second sir, there is a pipe which is open at both ends. So by default हमने रेगुलर लेक्चर से आपको हमेशा बताया है बेटा, बाय डिफॉल्ट जब बोला होगा ओपन, ओपन मतलब दोनों तरफ से ओपन है, एंड क्लोज मतलब एक तरफ से क्लोज. करेक्ट है? यहाँ पे इफ यू नीड द वेरी फर्स्ट डायग्राम आई कैन जस्ट शेयर क्विकली विद यू बेटा. ये लीजिए, हाफ लूप का फॉर्मेशन होगा. करेक्ट बेटा? इन द वेरी फर्स्ट डायग्राम क्या बनेगा? हाफ लूप बनेगा. बेटा नेक्स्ट डायग्राम में क्या बनेगा? 1 एंड हाफ बनेगा. नेक्स्ट डायग्राम में क्या बनेगा? 2 एंड हाफ. करेक्ट है बेटा? इसमें देखते हैं यहाँ पर कितने लूप बनेंगे सर? मिनिमम द आंसर इज 1. चेक कर लेते हैं सर. हाफ हाफ टोटल यहाँ पे एक कंप्लीट लूप का फॉर्मेशन हो गया. तो यहाँ पे अगर हम रेगुलर लेक्चर के हिसाब से सारे डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो क्या क्या मिलेगा? 1 लूप यू विल गेट, then 2 then 3 then 4 and so on. That's why students इन दोनों का जो कंक्लूजन है it is completely different. बेटा यहाँ पर frequency of vibration of air column n होता है hv divided by 4l. Yes बेटा, v is velocity of sound wave, l is length, yes length of air column, and h is harmonic number. करेक्ट है बेटा? h का नाम हुआ यहाँ पे हार्मोनिक नंबर. वैल्यू की अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा बच्चों हमें. h का वैल्यू कैन बी 1 3 5 7. आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ऑड नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं बिकॉज़ फॉर अ पाइप व्हिच इज क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. सो स्ट्रिंग वाले केस में ऑल हार्मोनिक्स वर प्रेजेंट, तो हमने 1 2 3 4 लिखा. यहाँ पे सर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. ये स्टोरी में आधा आपको बता चुका हूं बेटा. हाफ 1 एंड हाफ 2 एंड हाफ लूप का फॉर्मेशन होगा. यस ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है बेटा. अगर हम कैपिटल एल की बात करें, कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम, या फिर लोग इसे टोटल लेंथ भी कहते हैं. टोटल लेंथ यानी इफेक्टिव लेंथ. ऐसा नाम मैं क्यों दे रहा हूं आपको समझेगा अभी बेटा. दिस इज एक्चुअली लेंथ ऑफ द पाइप प्लस एंड करेक्शन. यस बेटा, लेंथ ऑफ द पाइप ये होगा स्मॉल एल. करेक्ट है? हम जानते हैं बेटा एंटीनोड एग्जैक्टली क्यों जहां खत्म हुआ वहां नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है. सही है बेटा? तो हमने सोचा एंटीनोड यहां पे होगा, बट एक्चुअली एंटीनोड थोड़ा बाहर होगा. यस तो बेटा इसी को हम एंड करेक्शन कहते हैं. So what is the total length? What is the effective length? It is छोटा l plus end direction, that is nothing but बड़ा l. Are you following this? And रही बात ये end direction की, students इसका खुद का फॉर्मूला होता है 0.3d end direction E. 0.3d sir, where d is inner diameter of the tube. Okay? अरे यहाँ पे आते हैं. Pipe is open at both the ends. यहाँ पे students frequency of vibration of air column n will be hv divided by 2l. बेसिक स्टोरी वही है. 4 is replaced by 2. सबका नाम वही है बेटा. h is definitely हार्मोनिक नंबर. ये सर अब तो बताइए अपने को, बट यहाँ पे सर h का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 etc. because here बेटा all harmonics will be present. हार्मोनिक नंबर 1 2 3 4 सारे हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे. तो h के आपको सारे वैल्यू कंसीडर करने हैं. करेक्ट है बेटा? क्लोज पाइप में क्या स्टोरी था बेटा? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट 1 3 5 7 etc. ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट 1 2 3 4 etc. कैपिटल L इफेक्टिव लेंथ सर, टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, व्हाटएवर यू से, that is length of the pipe. छोटा l plus end direction, but sir this time end direction will be 2e. क्यों सर? डायग्राम आपके सामने चेक करिएगा बेटा. स्टूडेंट दिस इज लेंथ ना, छोटा है राइट, लेंथ ऑफ द पाइप. तो ऊपर आपको एंड करेक्शन चाहिए, नीचे भी तो आपको एंड करेक्शन चाहिए ना, राइट? तो टोटल ये जो इफेक्टिव लेंथ थी क्या हो गया? यस एल छोटा l plus e which is 2e. तो छोटा l plus 2e, तो यहाँ पे जो 2e होने वाला है वो डेफिनेटली होने वाला है 0.6d, where d is inner diameter of the tube. Are you following this question? बेटा अभी हम थोड़ा ओवरटोन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज़ मैंने देखा है
usually overtone का number they give you and you have to substitute harmonic over here. आपको जानते हैं यहाँ पे आपने सीखा ना, तो समय से किसका नंबर दिया हुआ ओवरटोन, बट हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है हार्मोनिक का नंबर। बेटा यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे दिस इज हार्मोनिक 1 2 3 4, यस ओवरटोन लिख देते हैं बेटा। नाउ फर्स्ट हार्मोनिक इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो कभी भी कोई ओवरटोन नहीं होगा, तो मेरा बेटा क्रॉस फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज नॉट द ओवरटोन तो क्रॉस, यस बेटा। सेकंड हार्मोनिक विल बी फर्स्ट ओवरटोन, third harmonic will be second overtone, fourth harmonic will be third overtone and so on. Are you following this? मतलब हार्मोनिक और ओवरटोन में सिर्फ एक का डिफरेंस है। अगर आपको रेगुलर लेक्चर से फॉर्मूला चाहिए, मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा। स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं nth ओवरटोन ओवर हियर विल करस्पॉन्ड टू n+1 का हार्मोनिक, यस सर। चलिए nth ओवरटोन विल करस्पॉन्ड टू n+1 का हार्मोनिक, ओवरटोन का जो भी नंबर होगा आप उसमें +1 कर लेंगे, आपको हार्मोनिक का नंबर मिल जाएगा, यस। बट यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा सोचना है बेटा, आपको सिर्फ +1 करके काम नहीं चलाना है, बिकॉज़ ओवर हियर एज वी कैन ऑब्जर्व ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, राइट। बेटा ओवरटोन की अगर हम बात करें h = 1 मतलब हार्मोनिक नंबर 1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा ओवरटोन, 0th ओवरटोन, कोई ओवरटोन है ही, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ बेटा। दिस विल बी फर्स्ट ओवरटोन, देन सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। बेटा ओवरटोन्स हमेशा सारे प्रेजेंट होते हैं, हमने सुना है रेगुलर सेशन में ऑल हार्मोनिक्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट बट ऑल ओवरटोन्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ओवरटोन हमेशा सारे प्रेजेंट रहेंगे, याद आ रहा है बच्चों को ये ओवरटोन 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं 1 3 2 5 3 7, जो +1 करके अपना काम चलेगा नहीं, जैसा अपना रिसेंटली डिस्कशन हुआ। बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं in case of I which is closed at one end and the overtone will correspond to beta 2n+1 का हार्मोनिक, yes sir, and the overtone will correspond to 2n+1 का हार्मोनिक। मतलब आपको करना होगा डबल करके +1, डबल करके सर +1 में स्टार्ट विद दिस। बेटा 1 का डबल will give you 2, 2 + 1 is 3, 2 का डबल 4, 4 + 1 is 5, 3 का डबल is 6, 6 + 1 is 7, yes sir, डबल करके +1 and overtone will give you 2n+1 हार्मोनिक। ये कब करना है क्लोज टाइप में, ओपन टाइप में तो सिर्फ +1 करके अपना काम चलेगा। आप समझिए स्टूडेंट्स क्या चल रहा है ये, ओके। सोनोमीटर वायर वाले केस में व्हेन रेजोनेंस इज अकरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर कैपिटल N is going to match with the frequency of vibration of a string। कैपिटल N will match with छोटा n, frequency of vibration of string will match with frequency of tuning fork। करेक्ट है बेटा, ये कब होगा स्टूडेंट्स एट रेजोनेंस। एंड फॉर्मूला तो सर हम n का जानते हैं, ये p/2 है √t/m, ओके। सो बेटा दिस इज formula list from our chapter superposition of wave from Bode's pattern point of view।